خوشبو سی جو ہر دم ہے، خوشبو سی جو ہر دم ہے، داتا تیری نگری میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلشاد کا پاکستان۔ آج کے میری ولاگ کا موضوع ہے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات۔ آپ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر راوی پل سے اور اندرونی لاہور سے میٹرو بس سروس کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ عرس کی تقریبات میں حسب روایت غیر معمولی رش دیکھا جاتا ہے۔ داتا دربار میں انٹرنس کے لیے اور سیکورٹی چیکنگ کے لیے بھاٹی گیٹ کے سامنے مین روڈ پر ہی ایک بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف لوئر مال پر سینٹر ماڈل اسکول کے سامنے اور ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے 3 اور سیکورٹی پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بھی باقاعدہ چیکنگ کے ساتھ داتا دربار تک جانے دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے مینار پاکستان کی طرف، اردو بازار کی طرف بھی سیکورٹی پوائنٹ بنائے گئے ہیں اور وہاں سے بھی باقاعدہ چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دربار کے اندر داخل ہونے کا یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہاں سے چیکنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں آپ مین بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ داتا دربار کی مین بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی سما ہال ہے اور یہ مین گیٹ جو سما ہال کے ہیں یہ نیچے تہہ خانے میں جاتے ہیں اور اس دربار کے 3 اطراف میں اس طرح کے گیٹ ہیں جو زائرین کی سما ہال تک رہنمائی کرتے ہیں۔ اس ہال میں ملک کے نامی گرامی قوال آتے ہیں، قوالی کرتے ہیں۔ تمام لوگ یہاں آ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، قوالی سنتے ہیں جو پورا دن اور اکثر راتوں کو بھی جاری رہتی ہے۔ یعنی اس کے تینوں دن رات یہاں پر قوالی ہوتی ہے اور لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس وقت یہاں قوالی کی تیاری ہو رہی ہے اور لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وسیع و عریض علاقہ اور پختہ فرش والا علاقہ داتا دربار کا مین اور مرکزی علاقہ ہے۔ سامنے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے احاطے کے بالکل سامنے 2 بڑے بڑے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں جو مسجد کے مین مینار ہیں۔ اس کے درمیان سبز رنگ کا داتا علی حجویری کے مزار کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، اوپر بہت خوبصورت قسم کے دھاتی نشانات بنے ہوئے ہیں اور سبز رنگ کی جھالر لٹکی ہوئی ہے اور یہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہے۔ لوگ بھی جوک در جوک مزار کی طرف رواں دواں ہیں۔ درمیان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کچھ دیر کے لیے زائرین بیٹھتے بھی ہیں اور نیچے تہہ خانوں تک بھی جا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت موجود ہوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر۔ آپ کو میرے پیچھے بہت بڑی 2 میناروں والی مسجد اور اس کے بالکل سامنے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا مزار نظر آ رہا ہے جس کا اوپر نیلا گنبد ہے اور اس کے آس پاس آپ دیکھیں برآمدہ نما مسجد کا بیرونی احاطہ ہے اور وسیع و عریض کھلا علاقہ۔ یہاں اس کے اس پار پردوں کے پیچھے خواتین کا انتظام ہے۔ آج 19 صفر کی تاریخ ہے 2023 کی۔ آج عرس کا دوسرا دن ہے۔ 18، 19 اور 20 صفر کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ لوگ دربار پر حاضری کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔
दाता अली हजवेरी रहमत उल्लाह अलैह की शान में एक खूबसूरत कलाम पेश किया जा रहा है। कि होता है गुज़रिया से तैबा की हवा का, होता है गुज़रिया से तैबा की हवा का, खुशबू सी जो हरदम है, खुशबू सी जो हरदम है, दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है, दाता तेरी नगरी में। और नाजरीन यहाँ देखें, मज़ार के अंदर कब्र मुबारक को देखने के लिए एक अलग हजूम है, जो चारों तरफ से मौजूद रास्तों से कब्र को देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। एक तरफ तो ख़वातीन का रश है और दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी कब्र को देखने के लिए बेताब हैं। बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम को फैलाने वाली आम तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत हज़रत दाता गांजी बख्श भी हैं। आप 11वीं सदी के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपका नाम अबुल हसन अली बिन उस्मान था। पैदाइश आपकी नवंबर 1009 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात 25 सितंबर 1072 ईस्वी में लाहौर में हुई। आपको अली हजवेरी या दाता गांजी बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आप इमाम हसन इब्न अली करमुल्लाह वजह की बराह रास्त औलाद थे। आप 11वीं सदी के सुन्नी मुसलमान गज़नवी सुल्तनत के सूफ़ी आलम दीन और मुबल्लिग थे। कश्फुल मजूब आपकी मशहूर तालीफ़ थी। कहा जाता है कि हज़रत अली हजवेरी ने अपनी तबलीग के ज़रिए से जनूबी एशिया में इस्लाम के फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के रवायती सुन्नी मुसलमान हज़रत अली हजवेरी को पाकिस्तान का मरकज़ी वली मानते हैं। इसके अलावा जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वलियों में से एक हैं और लाहौर में उनका मकबरा है। दाता दरबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ार है। यहाँ लाखों ज़ाहिरीन सालाना आते हैं और यहाँ पर नजराना अकीदत पेश करते हैं। आपकी तालीमात बड़ी खूबसूरत और नुमायाँ होती थीं। आपके नज़दीक सूफ़ी सफ़ा से निकला है और सफ़ा की असल दिल को गैर अल्लाह से मुनक़ता करना है और दुनियादारी से खाली करना है और इस दिल को अल्लाह से जोड़ना है। इसका मतलब है कि इखलास और सच्ची मोहब्बत के साथ खुदा की बंदगी करना ही इंसान की मेराज है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी और बाबा फरीदुद्दीन कंशकर ने भी कस्ब फैज़ के लिए आपके मज़ार पर 1639 में चिल्ले काटे थे और फैज़ हासिल किया था। तारीख़ के हवालों के मुताबिक आपका रोज़ा नासरुद्दीन मसूद के बेटे ज़हीरुद्दीन दौला ने तमीर करवाया और खानका का फ़र्श और ड्योढ़ी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में तमीर हुआ। आपका उर्स हर साल इस्लामी महीना सफ़र में 18 से लेकर 20 तारीख तक मनाया जाता है और इस साल आपका 980वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। कश्फुल मजूब के अलावा मिनहाजुद्दीन और किताबुल फनात सहरुल कुलूब भी आपकी आम तसनीफ़ में शामिल होती हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको इस मस्जिद के मेन हाल में लेकर चलते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ उलमा कराम ज़ायरीन से और हाज़रीन से ख़िताब कर रहे हैं और कुरानी और दीनी तालीमात से नवाज रहे हैं। इस बात को हदीस के तनाज़ुर में बयान करूं, ये जो उन्होंने हाज़िरी का सलीका सिखाया है, तालीमात पर अमल करना, बेशक घर बैठ के ही तवज्जो उनकी तरफ रखें, हाज़िरी पेश करें, लेकिन एक हाज़िरी का ये भी सलीका है और ये हाज़िरी के सलीके की तारीफ सदर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से भी होती है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन पर हाकिम बनाकर भेजा। उस कदर हज़रत मुआज़ बिन जबल को अलविदा करने के लिए सरकार खुद चल
मफ़हूम ये मुआज़, शायद ये तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात हो और अब जब तुम आओगे तो मेरी उम्र की ज़ियारत करना। हज़रत मुआज़ बिन जबल की आंखों से आंसू रवा हो गए। जाहिर है कि एक गुलाम को, उम्मती को, जिसकी तड़प और जिसकी जिंदगी का मकसद ही हुजूर की बारगाह में हाज़िरी हो, उसको जब ये सुनाई दी कि आखिरी मुलाकात है, उसके क्या जज्बात होंगे। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तसल्ली देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो क़यामत तक तड़पते दिल रखने वाले आशिकों को तसल्ली भी देता है और उन्हें हुजूर की बारगाह का कुर्ब पाने का सलीका भी सिखाता है। इरशाद फरमाया इन्ना अव्वलन नास बिल-मुत्तक़ून मन कानू व हैथु कानू। मुआज़, जो बंदा मुत्तकी है वो कोई भी हो, कहीं भी हो, मुझसे दूर नहीं, मेरे सबसे ज्यादा करीब है। आखिर दुआया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस मस्जिद का एक खूबसूरत मीनार है। आप देखें कि कितना अजीम शान और बुलंद मीनार यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के दो मीनार एक मस्जिद की दाईं जानब और एक बाईं जानब मौजूद है। हज़रत अल्लामा इकबाल को आपसे बेहद अक़ीदत थी। इकबाल अक्सर आपके मज़ार पर रूहानी फैज़ के लिए हाज़िर होते थे। इकबाल ने जब अपना पहला फ़ारसी शेरी मजमूआ असरार खुदी शाया किया तो उसकी एक नज़म में आपको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हज़रत सैयद अली हजवेरी उम्मत के सरदार हैं। आपका मज़ार बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए मानंद हरम है। पंजाब की सरज़मीन आपके दम से ज़िंदा हो गई। हमारी सुबह आपके आफ़ताब से मुनव्वर हो गई। आपकी बरकत से हमारे यहाँ वही दौर ताज़ा हो गया जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में उस वक्त की इस्लामी दुनिया में मौजूद था और उनके इरशादात से दीन हक़ का शोरा आम हो गया। आपका एक मशहूर कौल है, आप फरमाते हैं कि नफ्स को उसकी ख्वाहिश से दूर रखना हकीकत के दरवाज़े की चाबी है। मेरे भाग जा क्या लंगर लेकर आप आए हैं? काम बट रहे हैं। इस मज़ार पर उस पर लंगर की तकसीम आम है, सबील है और दूध की सबील भी है, यानी पानी भी यहाँ लोगों के लिए वाफर मकदार में मुहैया किया जाता है। खाने पीने की चीज़ें भी हैं, इसके अलावा दूध की सबील का भी इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। लोग आते हैं क़ीदत से उसका और दाता का लंगर खाते हैं और उनसे फैज़ याब होते हैं। बैठ के खा। सरकार कीजिएगा लंगर ही है। ये ख़वातीन ज़राअत मस्जिद के जनूब में उसका मरकज़ी और बड़ा दरवाज़ा है जो उसके दिनों में तो इसके बंद रखा जाता है और इसके अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनाया गया सोने का दरवाज़ा भी मौजूद है, जो आप देख रहे हैं कि मेन गेट के दाएं और बाएं जानब इसके दो कुआड़ या तख्ते हैं जिनके ऊपर सोने की पत्रियों से काम किया गया है। बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है। अक्सर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद ही रखा जाता है। दाता दरबार के शमाली और जनूबी बाज़ार में खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं। यहाँ पर लंगर के लिए
یا لنگر تقسیم کرنے کے لیے دیگیں پکائی جاتی ہیں، چپاتیوں اور روٹیوں کا بندوبست بھی ہے۔ اس کے علاوہ عام جو روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اندرسے وغیرہ یا مٹھائیاں بھی یہاں پر بنائی جاتی ہیں۔ اس جو ایک میلے کا ایک سماں ہوتا ہے، چھوٹے بڑے تمام لوگوں کے لیے تمام چیزیں یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ میلہ بھی ہوتا ہے، عرس بھی ہوتا ہے، لوگ سیر بھی کرتے ہیں اور دربار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مین روڈ پر ہی دودھ کی سبیل کا بھی یہاں بندوبست ہے۔ تمام لاہور شہر سے گوالے یا وہ لوگ جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں اپنا دودھ ان 3 دنوں میں یہیں حضرت داتا علی حجویری کے دربار پر لاتے ہیں اور لوگوں میں فری تقسیم کرتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔